دوستوں السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کون تھے اور ان کی قوم نے ان کی اونٹنی کے ساتھ کیا کیا؟ دوستوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے اسلامی واقعات سب سے پہلے ملیں۔ دوستوں یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں قوم سمود کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی سرخیزی عطا کی تھی، مٹی میں بڑی طاقت تھی، فصل خوب ہوتی، پانی بھی بہت تھا۔ لوگوں نے کنویں کھودے ہوئے تھے، دراصل یہ اپنے وقت کے بہترین انجینئر تھے۔ ان کے محلات، قلعے، مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا لیتے۔ یہ مکان غار نما ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام ہوتا۔ پہاڑ کی تعمیر ہونے کی وجہ سے بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان جتنا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہیں تھا، اور یہ خوشحالی اور طاقت ہی کا گھمنڈ تھا جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے کھیل کا درجہ رکھتا تھا۔ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ انہی حالات میں ایک نوجوان کا چرچا ہوا، سرخ و سفید رنگ، لمبے قد اور مضبوط، جس کا مالک یہ نوجوان عام لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ اسے اپنے زمانے کی فضول رونقوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے بت قدوں میں رکھے ہوئے بتوں سے بھی سخت نفرت تھی۔ لوگ اس کی زبان سے بتوں کے متعلق نفرت کے کلمات کئی دفعہ سن چکے تھے، لیکن اس کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس نوجوان کا نام صالح تھا، ایک معزز قبیلے کے باوقار شخص جسے بعد میں اللہ نے اپنے نبی بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی، انہیں کھانا کھلانے کے بعد لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بلانے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، اے لوگوں، آج میں تمہیں وہ باتیں یاد کرانے کے لیے بلایا ہے جن کو تم بھول چکے ہو۔ مجھے علم ہے کہ تم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہاری زمین کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت کرنے کے بجائے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو۔ اے میری قوم کے سرداروں، یہ گمراہی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی ہے تمہارا اصل رب۔ اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سرکشی کا رویہ چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو کے جواب میں ان سرداروں نے کہا، اے صالح، ہمیں تم سے بہت سی امیدیں تھیں، ہم تمہیں بہت معزز اور باوقار شخص سمجھتے تھے، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کہہ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو گالی دی ہے۔ تمہاری کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، آخر ہم ان خداؤں کی پوجا کیوں چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے؟ تم نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ آئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں میں کی تو نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں کی دھمکی کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی رسالت کا عام اعلان کر دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ صالح نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ حضرت نوح اور ہود کی طرح کے رسول ہیں، ان کا انکار کرنے پر اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ مگر طاقت کے غرور میں پڑے ہوئے سرداروں اور مذہبی لیڈروں نے
लोगों को ये कहकर तसल्ली दी कि अगर वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते और गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे होते तो अल्लाह उन्हें पूरे अरब में इतनी इज्जत ना देता, इनकी ज़मीनों को इतना सरसब्ज ना बनाता और इनके महल और पहाड़ों में तराश हुए मकान इतने उम्दा ना होते। बुत खानों के मालिक यानी काहान कहते, ए लोगों खुद सोचो, जो हाथ गुनाहगार हो इन हाथों में अल्लाह ये हुनर क्यों पैदा करेगा जिनकी वजह से वो पूरी दुनिया के मुअज़्ज़िज़ बन जाए। कुछ झूठे दानिशवर ये कहने लगे, दरअसल इस सालेह अलैहिस्सलाम का अलहदा और तन्हा रहने से नाऊज़ बिल्लाह ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है, इसलिए ये अपने बाप दादा को गुमराह करार देकर ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कुछ ज़्यादा हमदर्दी जताते तो कहते, बेचारे सालेह पर किसी बदरूह का साया पड़ गया है। बाज तो ये कहने से भी बाज ना आए कि सालेह जादूगर हो गया है, और कुछ ने यह भी कहा, हमें यकीन है कि सालेह ने यह सारा चक्कर इसलिए चलाया है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इनका सरदार बन जाए। ये बहुत चालाक शख्स है। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सरदारों और बुतकदों कहने वाली बातों की कोई परवाह ना की और अपनी तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से कुछ लोगों ने ईमान कबूल कर लिया और कुछ के रसूल होने का इकरार करके शरीक और बुरी बातों से बाज आ गए। इनमें से अक्सर ऐसे थे जो गरीब और आम लोग थे। कौम के सरदारों ने इन ईमान लाने वालों को बेवकूफ़ करार दिया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का खूब मजाक उड़ाया। कई बरसों की तबलीग के बाद समूद कौम आपसे तंग आ गई। वो आपको अपने ताकत और किबले का मुअज़्ज़िज़ शख्स होने की वजह से कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती थी। इन दिनों कबीले के किसी फर्द के कत्ल हो जाने पर जंग का लंबा सिलसिला शुरू हो जाता था। चुनाचे कौम के सरदारों ने बुतकदों से मिलकर एक वफद बनाया। ये लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा, ए सालेह, हम तुम्हारी बातों से सख्त तंग आ गए हैं। तुम्हारे अजाब की धमकियां ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हमारी खुशहाल और रंगीन ज़िंदगी को तुमने कबाब में हड्डी बनाकर तबाह कर दिया है। इस मौके पर हम तुमसे साफ साफ बातें करना चाहते हैं। वो ये कि तुम कोई मौज़ा दिखाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। तब एक दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर एक ऊँटनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है। ये तुम्हारे मुतालबे पर भेजी गई है, इसलिए एक दिन ये पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम। अगर इस ऊँटनी की बारी के दिन तुमने कुएं से पानी हासिल करने की कोशिश की या इस ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया तो तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। कौम के सरदार बहुत डरे। वो कुछ अरसे तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक इसे पाबंदी पर अमल करते रहे, लेकिन जल्द ही इनका सब्र ख़त्म हो गया। उन्हें ये ऊँटनी एक आंख ना भाती। वो ऊँटनी को अपनी चरागाहों में चरता देखते तो सख्त गुस्सा खाते। आखिर दो मालदार और अमीर औरतों ने दो आदमियों को तैयार किया, उन्हें अपनी दौलत का लालच दिया और इनसे कहा कि वो अल्लाह की निशानी इस ऊँटनी को हलाक कर दें। ये दो आदमी अच्छी तरह जानते थे कि वो एक बहुत ही खौफनाक काम करने का इरादा कर रहे हैं। वो पहले तो खौफजद हो गए, मगर रकम के लालच और दूसरे लोगों के कहने पर तैयार हो गए। इन आदमियों ने मंसूबा बनाया कि वो ऊँटनी को इस दिन हलाक करेंगे जब इसके पानी पीने का दिन होगा। चुनाचे अगले ही दिन वो कुएं के पास जाकर छुप गए। इनका प्रोग्राम ये था कि जैसे ही ऊँटनी कुएं के करीब आएगी वो इस पर हमला करके इसे मार देंगे। उन्हें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। ऊँटनी लंबे लंबे डाग भरती कुएं के करीब आई। दोनों जालिम चुपके से कुएं की ऊँट से निकले और ऊँटनी पर हमला आवर हो गए। एक ने तलवार का वार करके इसकी कूंचें काट दी और दूसरे ने आगे बढ़कर इसकी गर्दन पर नेज़ा मारा। बेचारी ऊँटनी ज़मीन पर गिर पड़ी। बेकसूर ऊँटनी को ज़मीन पर तड़पते देखकर दूसरे लोग भी पहुंच गए। बेकसूर ऊँटनी को ज़मीन पर तड़पते देखकर दूसरे लोग भी पहुंच गए। ये लोग चुप कर ये सारा मनाजिर देखते रहे थे। उन्होंने जब देखा कि ऊँटनी पर हमला करने वालों को कुछ नहीं हुआ तो इनका भी हौसला बढ़ा। वो भी अपना गुस्सा उतारने पहुंच गए।
अब वो सब मिलकर ऊँटनी को मार रहे थे। ऊँटनी को मारने वालों को रिश्वत देने वाली औरतें भी ये मनाजिर देख रही थीं। इन सब ने खुशी के नारे लगाए और हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम को मजाक उड़ाया और कह रहे थे कि ए स्वालेह, हमने अल्लाह की निशानी ऊँटनी को कत्ल कर दिया है और हमें कुछ नहीं हुआ। ये बेवकूफ़ लोग नहीं जानते थे कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई मोहलत को अपने हाथों से ख़त्म कर लिया है। हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि अब कौम समूद की मोहलत ख़त्म हो गई है। इन लोगों पर 24 घंटों के दौरान ऐसा अजाब आएगा कि इनकी बस्तियां इबरत का निशान बन जाएंगी। हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ये बात जब ऊँटनी के कातलों तक पहुंची तो वो बहुत खौफज़दा हुए, लेकिन माफ़ी मांगने की बजाय उन्होंने हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बनाया। 9 कबीले इकट्ठे हो गए और हर कबीले से एक जंगजुआ 9 कबीले इकट्ठे हो गए और हर कबीले से एक जंगजू मुंतखब किया गया और फैसला हुआ कि रात को हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम के घर पर हमला करके इनका किस्सा पाक कर दिया जाए। उन्होंने एक दूसरे से वादा लिया कि हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए सब कबीले एक दूसरे के साथ देंगे। यूं हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम का कबीला बाकी कबीलों से बदला लेने की जुर्रत नहीं करेगा और डर कर खामोश हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने कानून के मुताबिक इन काफिरों को अपने मंसूबे पर अमल करने की मोहलत ही न दी। अल्लाह ताला का कानून है कि इसके रसूल को इनकी कौम यूं शहीद नहीं कर सकती। अगर कौम इसकी कोशिश भी करती है तो इस पर अजाब आ जाता है। चुनाचे हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया और अपने मानने वालों के साथ लेकर रातों रात वहाँ से निकल गए। इसी रात वादी में एक खौफनाक तूफ़ान आया। इस तूफ़ान की गरज इंतहाई दहशतनाक थी। इसने अहले समूद को तिनकों की तरह बिखेर कर रख दिया। मजबूत महल और किले नुमा मकानों में रहने वाले ये बदकिस्मत लोग अब अल्लाह की पकड़ में थे। सुबह हुई तो इनकी बस्ती इबरत का नमूना बन चुकी थी। एक भी फर्द जिंदा नहीं बचा था। मकानात और महलात का तो जिक्र ही नहीं किया। ये पहाड़ और महल पत्थरों के नहीं बल्कि कपड़े के बने हुए थे और हवा ने आग की तरह इनको जलाकर तबाह कर दिया था। हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम ईमान लाने वालों के साथ फ़लस्तीन के इलाके रमल के करीब आकर आबाद हो गए और बाकी ज़िंदगी वहीं गुजारी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा इस्लामिक वाक़या आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो के सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपनी इस पर राय दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।